Yes, namaskar sabhi ko. Now we have with us Professor Sirish Palji, the speaker of the day. We welcome you, sir. Professor Dhananjay Joshi, sir, has also joined. Sir, we can begin the session now. Yes, Anjali, please. Yes, okay. So a very good afternoon to all and one present here on this faculty development program. I, Anjali Shokeen, on the behalf of University School of Education, welcome you to the fourth day of this online one-week faculty development program on the theme National Education Policy, a roadmap for future India. It's our proud and privilege to have with us Professor Sirish Pal Singh ji as the resource person for the today's day. Before we formally begin the program, I request Paras and Radhika to please play the Kulgeet of our university. Over to you, Paras and Radhika. लाएंगे हम सच का सवेरा, गुरु कृपा का होगा बसेरा। विद्या की लौ और लगन से हट जाएगा यह तम घनेरा। इस धरा से आसमां तक हम बना ले अपनी ज्ञान गरिमा। अपने श्रम से कौशलों से हम बढ़ा ले अपनी मान महिमा। फैल जाए अपनी सुगंध हर दिशा में, प्रगति पथ पर ख्याति अपनी हो हवा में। बादलों से ऊंची अपनी उड़ान, हम करेंगे विश्व का Thank you, Radhika and Paras, for playing such a beautiful song, the Kulgeet of our university. And I welcome you, sir, Professor Sirish ji, Professor Dhananjay Joshi ji, Dr. Shalini Yadav, and all my participants, all the participants of this faculty development program. We welcome you. So now... नमस्कार मैम, नमस्कार सर, शालिनी मैम, सभी को नमस्कार जी। So before I invite Professor Sirish Pal Singh ji to begin the session, I just want to introduce him with the audience, with the participants of this FDP. Dr. Singh is a professor in Department of Education at Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya. Sir is a merit holder in his master's degree of education with a gold medal. He has a wide experience of working in different universities like Central University of Punjab, Indira Gandhi National Open University, government degree at Saharanpur,
Professor Sirish is also life member of various organizations like World Peace Education Trust, AIAER, Council of Teacher Education, Indian Association of Teacher Education, and he has published around 50 research papers, 10 books, and also contributed in many chapters in the books. And today morning also, sir, I was looking at some paper and I found that you have written a paper in latest issue in the NCERT journal, that is CIET, and the paper is very nice. I have read in morning, today's morning only. So congratulations for that. And yes, so in continuation with that, I was telling you that sir has contributed many chapters in the book. A part of this, he has written around 7 units in the self-learning material and also developed a large number of e-lectures on YouTube. Professor Singh also headed the Department of Psychology as well as Commerce and Management for almost 4 years. He has also widely contributed in the corporate life of the university and having a lot of administrative responsibilities as a member of various committees in the university. He has also been a resource person for more than 130 lectures, which is really commendable. All in all, Professor Sirish Pal Singh is an extremely great academician who has made a name for himself in the field of education. We welcome you, sir. And now I request Professor Dhananjay Joshi, Dean, University School of Education and Director of this Faculty Development Program, to please welcome the resource person. Over to you, sir. Professor Dhananjay Joshi. Thank you very much, Anjali. Our very good friend and very academically very sound profile, Dr. Sirish Singh. We have seen that you have always very kind enough for joining all of our endeavors. Last time in offline mode, you especially came from Wardha when Professor Sarojji organized FDP program on offline mode on a special lecture series. So I remember that you have contributed on research team with our students and our scholar, but this time this is a virtual mode. So we are here with all the participants of FDP, not only from different universities of Delhi, but they are from the different universities of India. Our theme was very important this time, new policy of education, a roadmap of new ahead. And we believe that you are the right person to deliver on that. And your perspective is very important, Sirish ji. I can take opportunity that on the place of discipline of education, you will be benefited with his expertise. कि आप उनसे कुछ सवालात भी करें क्योंकि वो इंटरेक्टिव मोड पे ज्यादा बिलीव करते हैं और उन्होंने हमारा ये स्वीकार किया निमंत्रण में। शिरीष जी, आपका आभारी हूँ। धन्यवाद शिरीष जी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। So thank you, Dhananjay sir, for the welcome address of the resource person for the day. And now I formally invite Professor Sirish Pal Singh ji to please enlighten us on the topic pedagogical transformation as envisioned by the National Education Policy 2020. Over to you, sir. जी नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम I am thankful to Dr. Anjali Sokin and Professor Dhananjay Joshi sir for inviting me here on this very important online faculty development program on national education policy. I'm also thankful to other faculty members of Guru Gobind Singh International University. And जैसा सर ने बताया कि last time we were here in offline mode, and now this is a very good, nicely designed and very important faculty development program to understand national education policy. And the topic which is actually given to me is pedagogical transformation
Actually, as you see the document of national education policy. So when you see the document, you will find out that many things are mentioned about pedagogic transformation, about teaching methodology, about teaching techniques, about innovations, new trends, new methodologies. So it is quite interesting to discuss about this issue, as we have this facility of interaction here. You can, if you have any query, any question in between also, you can write down in chat box. I will try to give answer to all such query. I have no PPT, so I have discussed various issues in this mod only. Yesterday it was a lecture by Dr. Vinod Sanwal. He has also delivered a lecture on the same topic, and I asked him that what you have delivered. So I asked something, have you covered this thing? He said yes. Then I asked, have you covered a blended learning? Yes, yes. Many things I asked that after all, I get to know that many things is touched upon on this pedagogic transformation. To have decided to discuss some other issues which maybe Dr. Sanwal is not discussed in his lecture. So as you see the document, the National Education Policy is a very, not a very large document, is only of 64 pages. We have only 64 pages document of National Education Policy. जब हम उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, देन उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में जो एक मेन कंसर्न एरिया हमें लगता है, वो कंसर्न एरिया बेसिकली ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है कि जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर के जो हमारा फ्यूचर है बेसिकली, उस फ्यूचर को या उन लर्नर्स को हमें इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से उनके लिए एवरीथिंग अरेंज करना है कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. फॉर दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट, दिस पॉलिसी हैज मेंशन्ड many innovative and new things. However, these are not entirely new and not entirely innovative. बट हम ऐसे इसलिए इनोवेटिव कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन, हमें एक नई तरीके की डायरेक्शन इस पॉलिसी से मिली है, जिसको हम देख के हम कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट का, दैट सिस्टम नीड सम शिफ्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल सिस्टम टू some new system. Like you must be aware that before 2020 March, we were not able to interact by such mode, like we are interacting here through Cisco WebEx. We are using for daily classes Google Meet, we are using Zoom, we are using GeoMeet, many platforms we are using nowadays. But before this pandemic, we were not able to communicate through this medium. Even हम लोग सोचते भी नहीं थे कि we can conduct such activity, we can conduct such program through this mode, we can interact through this mode. But now, as we see in this condition, this pandemic situation, now we shift our system from this offline mode to the entirely online mode. और ना अभी हम देख रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग पूरा हमारा ऑनलाइन मोड से चल रहा है. इसी के साथ साथ जो फैकल्टी डेवलपमेंट के तो इतने कोर्सेज पिछले 1.5 साल में हुए हैं कि किसी को जरूरत ही नहीं हुई कि बाहर जाए या कहीं भी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाए. घर बैठे ही इतनी चीजें नई सीखने को मिल रही हैं, नए डिस्कशन हो रहे हैं, नए वेन्यू क्रिएट हो रहे हैं, और हम इस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं जो पहले पॉसिबल शायद नहीं होता. So that is actually a shift from our this traditional system to the new system, to innovative system. यदि हम बात इसी पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कंसर्न में करें, देन दिस तरीके के सिर्फ एक शिफ्ट नहीं, उन्होंने इतने सारे शिफ्ट के बारे में बात की है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दो शिफ्ट
और उनको हमें बेसिकली इम्प्लीमेंट करने की अब आवश्यकता है। बेसिकली पीपल्स आर वर्किंग नाउ ऑन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि हमारी आपकी एक पार्टिसिपेंट होने के नाते, मेरी आपकी किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के नाते, दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग इस तरीके से उस जो चीजें दी गई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब हमें करना है। उसको हमें इफेक्टिवली कहीं ना कहीं उस चीजों को अब कार्य रूप में लेके आना है। सो क्या चीजें उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मेंशन की है, कैसे उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, व्हाट विल बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे हम उसको अपने करिकुलम में अपने टीचिंग पेडागोजी को चेंज करके करेंगे। वी विल हैव this kind of this discussion in coming 1 hour. So as you see, I have discussed that NEPs basically focus on the holistic development of learning. होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये कहा कि जो ओवरऑल थ्रस्ट है हमारे फॉर आवर करिकुलम एंड फॉर आवर पेडागोजी, दैट रिफॉर्म शुड बी ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। यानी कि हम बात करें अपने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जो हमारी हायर एजुकेशन है, हर लेवल पर, हर कंडीशन में, हर सिस्टम पर हमें एक शिफ्ट की जरूरत है। उस शिफ्ट की जो कि हमारा एक कल्चर है, जो रोट लर्निंग है हम लोग करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉग्निटिव डोमेन। हमें उस कॉग्निटिव डोमेन के डेवलपमेंट के लिए ही नहीं काम करना, बट वी नीड टू वर्क बियॉन्ड दैट डोमेन। हमें कॉग्निटिव डोमेन से अलग हमें अफेक्टिव डोमेन के लिए हमें बेसिकली अपना जो साइकोमोटर डोमेन है उसके डेवलपमेंट के लिए भी बेसिकली काम करना है। सो द एम ऑफ एजुकेशन विल नॉट बी ओनली द cognitive development, to develop our individuals in their knowledge, in their application not only, but we need to build their character. We need to create such holistic and well-rounded individuals, बेसिकली जिनको जो हमारे 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, उसकी जो नॉलेज है, उसके जो डीप सीटेड ट्रेजर है, उसको वो जान सकें, उसमें वो परफेक्ट हो सकें, उसमें अपने चीजों को, अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको कर सकें। सो द सिस्टम इज टू बेसिकली इस तरीके का डेवलपमेंट प्रमोट करना जहां कॉग्निटिव डोमेन के बियॉन्ड जाकर एक ओवरऑल क्रॉस कल्चर या फिर साइकोमोटर या फिर ऐसे सब इश्यूज को हम अपने लर्नर में मैनिफेस्ट कर सकें, अपने उसके इनकलकेट कर सकें कि वो हर फील्ड में एक बेटर इंडिविजुअल और बेटर प्रोफेशनल और बेटर स्किल्ड इंडिविजुअल बन सके बेसिकली। इसीलिए इन्होंने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कि जो करिकुलम और पेडागोगी का जो रीओरिएंटेशन है, उसको रिवैम्प्ड करने की जरूरत है बेसिकली टू अचीव दोज क्रिटिकल गोल। बिकॉज हम कोई शिफ्ट करते हैं, हम पेडागोजी में भी या सिस्टम में भी जब शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो वी नीड सम डिफरेंट ओरिएंटेशन, वी नीड सम डिफरेंट पोजीशन। बिकॉज रीजन इज बिकॉज हमें कुछ अलग करना है, हमें इनोवेटिव करना है। तो इनोवेटिव करने के लिए आपको जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसको आपको रीओरिएंट करना पड़ेगा, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। So that system should be reoriented and revamped because this goal is critical in nature. We need to develop the skills and values among our individual. So ये सिस्टम जो कि प्री स्कूल से लेकर जो हायर एजुकेशन लेवल तक हमें चेंज करना है, उसमें डेवलपमेंट लेके आना है, तो हमें आवश्यकता अपने सिस्टम को रीओरिएंट करने की और रिवैम्प करने की है। So the curriculum framework, the before pedagogy, we need to discuss about the curriculum. The curriculum framework should be in such a way that can ensure our skills and value inhibited conditions. Because basically what is the problem when we are thinking about the curriculum and pedagogy, we are thinking that both are the separate thing. हम मानते हैं कि जो करिकुलम है वो अलग है, पेडागोजी अलग है, बट यदि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो करिकुलम और पेडागोजी को आप अलग नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते इसको अलग? बिकॉज हम ये जानते हैं कि जो करिकुलम है उसी को तो आपको पेडागोगी के थ्रू इम्पार्ट करना है, उसी को तो आपको डेवलप करना है, उसी को तो आपको अपने लर्नर्स में एम्बेडेड करना है। सो इस दोनों चीजें कहीं ना कहीं मोरलेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इवन हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का पार्ट है। सो इसलिए जब हम पेडागोगी की बात करते हैं, पेडागोगी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू थिंक अबाउट द करिकुलम ट्रांसफॉर्मेशन। हमें करिकुलम फ्रेमवर्क के ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। सो जो ये कंडीशंस है टीचिंग और लर्निंग के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, वी नीड टू रिवैम्प फर्स्ट आवर करिकुलम। पॉलिसी बड़ा अच्छी बात कहती है कि यू नीड टू रिड्यूस करिकुलम कंटेंट। ये बड़ी एक तरीके से एक डिफरेंट थिंग, हम तो लोग कहते रहते हैं ना कि करिकुलम ऐसा है, चेंज करो, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, दिस इज मिसिंग, ये भी इस पार्ट में, ये जो पार्ट है ये नहीं है, आप ये नहीं पढ़ा रहे हो, आप इंडियन नहीं पढ़ा रहे, आप फॉरेन नहीं पढ़ा रहे, आप ये कंटेंट नहीं दे रहे, आप कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा रहे हैं तो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा रहे हैं, आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात नहीं कर रहे हैं। देन ये पॉलिसी बड़ा अच्छा एक व्यू देती है। Policy is saying you need to reduce curriculum content to enhance essential learning and critical thinking. बड़ा अच्छी बात है कि यदि अपने लर्नर्स के थिंकिंग स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना है, उसके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना है, उसके लर्निंग स्किल्स को डेवलप करना है, आपको करिकुलम कंटेंट को रिड्यूस करना होगा। आप बहुत ज्यादा करिकुलम मत दीजिए, नहीं तो क्या होगा, उस करिकुलम की रोट लर्निंग में ही फंस जाएगा वो। यू गिव certain elements, you give certain components, you give certain points. After those certain points, certain content, certain elements, you give the chance to think on such content critically, innovatively, creatively. ये चांस हमें देने की आवश्यकता है ना? क्यों? क्योंकि करिकुलम, यदि हमारा जो करिकुलम है वो करिकुलम बहुत वाइड होगा तो हम चांस ही नहीं दे पाएंगे अपने लर्नर को। हम नहीं कह पाएंगे कि हमारा जो लर्नर है वो उस चीज को बारे में, उसके पास समय ही नहीं रहेगा, वो तो लगा रहेगा पढ़ने में। तो करिकुलम कंटेंट रिड्यूस करें, उस करिकुलम कंटेंट में इस तरीके के प्रोविजंस करें कि हम कहीं ना कहीं अपने लर्नर के क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर पाए। क्रिटिकल थिंकिंग डज नॉट बिलीव, कई लोग सोचते हैं कि क्रिटिकल की बात हम कर देते हैं तो क्रिटिकल मींस क्रिटिक्स ही करेगा वो हमेशा। क्रिटिकल मींस यू नीड टू थिंक ऑन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑल सच जो एलिमेंट्स हैं हमारे करिकुलम, उसके हर एस्पेक्ट पर थिंक करे, उसके पॉजिटिविटी पर भी बात करे, उसकी नेगेटिविटी पर भी बात करे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कैसे इंप्रूव करना है उसको, हाउ वी इंप्रूव दैट निगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना? निगेटिव है तो उसको कैसे हमें रिप्लेस करना है, पॉजिटिव है तो उसको कैसे एनरिच करना है, कैसे बेटर बनाना है। दैट बेटरमेंट इज एसेंशियल। सो the main thing is you need to reduce curriculum. हमें करिकुलम को रिड्यूस करने की जरूरत है। करिकुलम कंटेंट को जब हम रिड्यूस करेंगे बेसिकली, तो जो कोर एसेंशियल स्किल्स हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, एंड जो होलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड या डिस्कशन बेस्ड या एनालिसिस बेस्ड लर्निंग है, उसको हम प्रमोट कर पाएंगे, है ना? वी कैन फोकस ऑन द इंक्वायरी, we can focus on the discovery, we can focus on discussion, and we can focus on the analysis based learning. और ये तभी संभव है when we have a limited content, when we have a well organized content, we have only the essential content, essential curriculum structures we should have, and on that essential structure we can give chance to, even हमारा content भी बड़ा भी है, then we should have freedom to choose relevant एंड जो हम कहेंगे कि एक तरीके से हमारे लिए जो यूजफुल है वो कंटेंट सेलेक्ट करने की हमें एक तरीके से
फ्रीडम यदि एक टीचर को या एक एडमिनिस्ट्रेटर को या एक ऑर्गेनाइजर हो या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल है उसको होगी, तो वो बेहतर तरीके से सीख सकेगा, बेहतर तरीके से अपने लर्नर्स के क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम कर सकेगा। सो फर्स्ट थिंग इज रिड्यूस करिकुलम और फोकस मोर ऑन द होलिस्टिक अप्रोच, फोकस मोर ऑन द इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। इसी तरीके से यदि हम मैंडेट, कंटेंट के मैंडेट की जो बात करें तो दैट शुड फोकस ऑन द की कंसेप्ट, that should focus on the ideas, application of those ideas and the problem solving abilities. So कंटेंट में आपको डेफिनेशन पढ़ाना, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाना, कंटेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि रटी रटाई या कही गई बातों पर ही हम बार बार फोकस कर रहे हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड। हमें उसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। हमें फोकस करना है किस चीज पर, हमें की एलिमेंट्स पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हम जो मेन उसके एलिमेंट्स हैं उन पर बात करें, की एलिमेंट्स पर बात करें, जो बेसिक फीचर्स हैं उस चीज की उस पर बात करें। हम ऐसे चीजों को निकाल के लेके आए जो कहीं ना कहीं एसेंशियल हैं एक लर्नर को जानना, और जिस पर लर्नर काम कर सकता है, जिस पर लर्नर कहीं ना कहीं अपने इनपुट्स दे सकता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पर फोकस करना। सो टू थिंग्स आर हियर। फर्स्ट इज रिड्यूस करिकुलम होगा, देन क्या होगा कि हमें एक तरीके से जो हमारे टीचिंग, हमारे जो स्किल्स हैं उनको इम्पार्ट करने में, क्रिटिकली थिंक करने में हम फोकस कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यही कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की आवश्यकता हमें है अपने करिकुलम कंटेंट में। दूसरी बात जो कही है उसमें ये कहा है कि वी नीड होलिस्टिक अप्रोच, वी नीड इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग। ये सारे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे से अलग दिखती तो हैं, नोमेनक्लेचर में दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट फोकस इज सेम, है ना। सबका जो फोकस है वह सेम ही है। क्या फोकस है? सबका फोकस यही है कि हम किस तरीके से इस कंटेंट को हम कैसे अपने लर्नर्स में इम्पार्ट करने का कोशिश करने के साथ साथ कैसे हम उसको इफेक्टिवली एक लर्नर को पार्ट बनाए, उस सिस्टम का पार्ट बनाए, जिस थिंकिंग की सिस्टम की हम बात करते हैं, जहां एक्टिविटी पर हम फोकस करते हैं, जहां एक्सपीरियंसेस पर हम फोकस करते हैं, तो उससे हमें लर्नर को पार्ट बनाने की आवश्यकता है। सो द टीचिंग और द लर्निंग स्किल्स हैं वो दैट शुड बी कंडक्टेड इन मोर इंटरेक्टिव वे, उसको ना इंटरेक्टिव वे में कंडक्ट करने की आवश्यकता है। सो वी शुड एनकरेज द डिस्कशन, है ना, we should encourage the such kind of classroom sessions where we can focus more on the collaboration, है ना। हम वहाँ पर एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज पर फोकस करें, हम वहाँ क्रिएटिव एक्टिविटीज पर फोकस करें, और वहाँ हम जो हमारे जो एसेंशियल हैं कंपोनेंट हमारी लर्निंग के, जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारा जैसे कंपोनेंट है कि हम कंस्ट्रक्टिविज्म को ही यदि पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कोलैबोरेशन को पर फोकस करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म हमारा कोऑपरेशन पर फोकस करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म हमारे ऐसी अप्रोचेस पर फोकस करता है जिसका कहीं ना कहीं जो पर्पस होता है वह यही होता है कि हम इंडिविजुअल को इंगेज करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इंगेज करें। ठीक है। सो ओनली 1 minute आई नीड, प्लीज 1 minute। सॉरी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें फोकस जो कंसेप्ट पर फोकस करना है वो यही फोकस करना है कि हमें क्रिएटिव इंडिविजुअल्स या कोलैबोरेशन या एक्सप्लोरेटरी जो एबिलिटीज हैं
उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग। और सबसे जो एक बड़ी बात की इस पूरे के पूरे एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो फोकस कहा है कि वी नीड टू फोकस ऑन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू रिफ्लेक्शन। तो इस पर बड़ा एक अलग अलग तरीके से बात की है एनईपी ने कि हमें प्रमोट करना किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है किस पर? वो फोकस करना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? द लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू रिफ्लेक्शंस। जो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम लर्निंग करते हैं, जिसमें हमारे सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं, जिसमें हमारे रिफ्लेक्शंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इन ऑल स्टेजेस, स्टेजेस मीन्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आर, जो हमारे स्कूल सिस्टम है या हमारा जो सिस्टम है पूरा ओवरऑल एजुकेशन का, उस सिस्टम में हमें अडोप्ट करना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को। चाहे वो हैंड्स ऑन लर्निंग हो, चाहे वो आर्ट इंटीग्रेशन हो, स्पोर्ट इंटीग्रेशन हो, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी हो, है ना, ये सारी पेडागोजी जो कि एक अलग तरीके से यहाँ पर दी गई। हालांकि हम बात बहुत दिनों से करते रहते हैं कि वी नीड टू इंटीग्रेट आर्ट, वी नीड टू इंटीग्रेट स्टोरी, वी नीड टू इंटीग्रेट स्पोर्ट्स इन आर्ट, बट जो एक क्लियर कट इंडिकेशन हमें दिया है वो इस पॉलिसी ने दिया है कि हमें जो अपने सिस्टम में इम्प्रूव करना है, जो ये सिस्टम को हमें किस तरीके से इन चीजों को इंटीग्रेट करके चलना है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है किसी भी टीचिंग मेथोडोलॉजी में कि जब हम उस मेथोडोलॉजी के स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट बेस्ड मेथोडोलॉजी की जब हम बात करते हैं, या हम ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, क्योंकि यहाँ पर तो एनईपी तो पूरा का पूरा यही बात करता है कि वी शुड फोकस ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, है ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर हम फोकस करें, हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर फोकस करें, हम इस चीज पर फोकस करें कि जहां कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट को हम अलग अलग ना करके एक सूत्र में या एक धागे में बांधने की बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, द लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस और थ्रू रिफ्लेक्शंस, इसको बड़ा फोकस करने की बात की है एनईपी ने कि हमारे जो अचीवमेंट है, जो हमारा गैप है ना, कि हम जो लर्निंग आउटकम निर्धारित करते हैं और जो हमारा अचीवमेंट है, आप लोग जानते ही होंगे कि वी ऑल आर फोकसिंग ऑन द लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम स्ट्रक्चर्स। यूजीसी के थ्रू या पिछले 2-3 सालों में इस चीज पर बहुत फोकस भी हुआ है कि जो कैसे हाउ वी क्रिएट द लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम। तो वहां पर यही था कि इस करिकुलम में बेसिक कंसिडरेशन यही था कि स्किल्ड इंडिविजुअल को क्रिएट करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को हमें फोकस करना है, और जो गैप एक रह जाता है कि अचीवमेंट का और लर्निंग आउटकम्स के बीच में, क्योंकि देखिए निर्धारित हम कर लेते हैं लर्निंग आउटकम, वी कैन जस्ट स्टेट सम लर्निंग आउटकम फॉर आवर कोर्स। हमारे प्रोग्राम की लर्निंग आउटकम्स हम बना सकते हैं, हमारे कोर्स की लर्निंग आउटकम्स हम बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा कोर्स है, इसकी ये लर्निंग आउटकम्स हैं, ये हमारे प्रोग्राम की लर्निंग आउटकम है, ये हमारे कोर्स की लर्निंग आउटकम है, ये हमारे पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो लेवल है, स्टेज है, उसकी लर्निंग आउटकम है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब उन लर्निंग आउटकम के अचीवमेंट की हम बात करते हैं। वन अचीवमेंट में और लर्निंग आउटकम में एक गैप होता है, तो हम कहीं ना कहीं ये गैप और बढ़ जाता है जब हम ये बात करते हैं कि जो हम चाहते थे वो इंडिविजुअल्स क्रिएट नहीं हुए। हम अपने इंडिविजुअल्स को इस तरीके से, हम अपने लर्नर्स को इस तरीके से क्रिएट करने की बात करते हैं कि जहां वो किसी जॉब के पीछे ना भागे, बल्कि वो इतने कॉम्पिटेंट हों कि खुद जॉब उनके पास आए, खुद जॉब उनके पीछे भागे। तो इस तरीके के लर्नर यदि हम नहीं क्रिएट कर पा रहे, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं उस गैप की तरफ बात कर रहे हैं जो अचीवमेंट में और डिसाइडेड लर्निंग आउटकम में होता है। सो दैट गैप शुड बी फिल्ड। तो इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर यहाँ पर फोकस करते हुए जो एनईपी ने बात की, उन्होंने यही कहा कि वी नीड टू इनकॉर्पोरेट सम न्यू थिंग्स लाइक
फर्स्ट थिंग इज आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो बात एनईपी करता है वो यही कहता है कि वी नीड टू इंटीग्रेट आर्ट एजुकेशन इन द करिकुलम या क्लासरूम ट्रांजेक्शन सिस्टम, है ना। दैट शुड नॉट ओनली फॉर द जॉय, दैट शुड नॉट ओनली बी द करिकुलर एक्टिविटीज। As you all know, now we are not having any co-curricular activities. आप लोग जानते होंगे कि आजकल हम बात कर ही नहीं रहे हैं को-करिकुलर एक्टिविटीज की। आजकल हम सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं, एनईपी एक ही चीज को स्टेट करता है, या एनईपी को समझने वाले लोग एक ही बात करते हैं कि नथिंग इज को-करिकुलर, नथिंग इज एक्स्ट्रा करिकुलर, एवरीथिंग इज करिकुलर, है ना। जैसे आप देखते होंगे एनईपी डॉक्यूमेंट को, तो आपको कहीं को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में ज्यादा इतना फोकस है ही नहीं, या बात ही नहीं करते, लेकिन वो क्या कहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलर। तो जो आर्ट को या कल्चर की एक्टिविटीज को हम कहते थे कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, दीज आर नॉट को करिकुलर एक्टिविटीज, बेसिकली दीज आर करिकुलर एक्टिविटीज। दो वी नीड टू इंटीग्रेट आर्ट को जो पहले को करिकुलर एक्टिविटीज थी, नाउ ऑनवर्ड्स वी फोकस on the integration of art education in our curriculum transaction, in our classroom transaction. Or that should not only for the joyful classroom, but it should be built in such condition that our Indian ethos should be integrated, our Indian culture, Indian art should be integrated in the teaching and learning process, or not only for the some specific level, for all the levels. So this integration will strengthen the link between the culture and education, यानी कि जो हमारे एजुकेशन और कल्चर का गैप है, बिकॉज हम बात करते हैं ना आजकल कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी की बात करते हैं, कल्चरली अप्रोप्रिएट पेडागोजी की बात करते हैं, कल्चरली रेलेवेंट पेडागोजी की बात करते हैं। ये सारी पेडागोजी जो हैं कल्चरली रेलेवेंट, कल्चरली रेस्पॉन्सिव, दीज आर बेसिकली क्यों हम बात करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी सी द डिफरेंसेस बिटवीन the achievement and the decided goal of our education। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस सिस्टम को हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है ना, उस सिस्टम को हमें कुछ नई डायरेक्शन में लेके जाने की आवश्यकता है। सो फर्स्टली वी नीड टू, जो एक एनईपी बात करती है वो ये कहती है कि आर्ट एजुकेशन को, आर्ट इंटीग्रेशन को कंपल्सरली हमें अपने सिस्टम का, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बनाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जो गैप है कल्चर और एजुकेशन में, दैट गैप शुड बी फुलफिल्ड। सो हमें क्या करना है? आर्ट एजुकेशन को इनबिल्ड करना है, आर्ट एजुकेशन को हमें बात करनी है आर्ट एजुकेशन के बारे में, और आर्ट एजुकेशन के थ्रू हमें कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी, कल्चरली रेलेवेंट पेडागोजी, इस तरीके की नई पेडागोगिक टेक्निक्स को हमें अपने टीचिंग में, अपनी लर्निंग में इनकॉर्पोरेट करना है। Even though these are not different techniques, मैंने खुद काम किया है उन कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी, तो वो कोई अलग पेडागोजी नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग दैट इज द सेम, बट वी नीड टू कंसल्ट आवर कल्चर। फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग हियर इन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी। दिस इज बेसिकली हिंदी यूनिवर्सिटी वेयर वी आर टीचिंग थ्रू हिंदी मीडियम। हम हिंदी के माध्यम से अपना टीचिंग को, रिसर्च को प्रमोट करते हैं। We are Central University, but we are located in the place that is basically the Marathi oriented culture we are having here. I belongs to the UP, so मैं हिंदी कल्चर से हूँ। यहाँ पे हमारा जो कल्चर है वो बेसिकली लैंग्वेज का जो एक इशू है वो यही है कि यहाँ पर बेसिकली मराठी कल्चर है, बट थ्रू दिस कल्चर हमें हिंदी माध्यम से पढ़ाना है, हमें हिंदी के थ्रू हमें बात करनी है, बट कहाँ पर करनी है? हिंदी यूनिवर्सिटी में करनी है, और उस सिचुएशन में करनी है जहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा जो आसपास का जो एरिया है वो मराठी लोगों का है, जहाँ पर हम मराठी भाषा पर ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। सो we need culturally responsive pedagogy here. We need some terminology from this culture. उस तरीकों को, उसको यदि हम incorporate करेंगे, उसको यदि हम use करेंगे, तो ज़्यादा effectively हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। So art integration not only for the joy, art integration for the integrating culture into our education. ये बड़ा एक अलग तरीके का एक पेडागोगी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हमारी एनईपी करती है। दूसरी जो बात करती है बड़ी, हम लोग हमेशा से कहते रहे हैं
कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब है और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हालांकि आजकल कंडीशन दूसरी है, आजकल खेल कूद कर ज्यादा जल्दी हम लोग नवाब बन सकते हैं। बट दिस एनईपी इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस स्पोर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग। बड़ा इम्पोर्टेंट एक कदम है, एक स्टेप उठाया है एनईपी ने कि दे आर थिंकिंग, दिस डॉक्यूमेंट इज सेइंग वी नीड टू फोकस ऑन sports integration. Sport integration means it's a kind of, because okay, स्पोर्ट्स किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो है का नहीं है, सभी सब्जेक्ट को इसमें सम्मिलित करता है। सब क्रॉस कल्चरल करिकुलर पेडागोजिक अप्रोच है। और वो क्या करती है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्किल। कैसे स्किल्स? जिसमें हम सेल्फ डायरेक्शन की, सेल्फ डिसिप्लिन की, टीम वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजनशिप, ऐसे जो हमारे जो स्किल्स हैं, ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको ये प्रमोट करने का काम करता है। सेल्फ इनिशिएटिव्स के पर ये काम करता है, कोलैबोरेशन पे काम करता है स्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि कोलैबोरेशन नहीं होगा तो स्पोर्ट्स में आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है, कोई भी स्पोर्ट्स में आप जा रहे हैं तो अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट आपको करना होता है, आपको टीम वर्क में काम करना है, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है ना। ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हैं, आपकी 50 पूरी हुई और आप अपना विकेट थ्रो करके आ गए। वहां पर तो ये सिखाया जाता है कि आपको जीतने के लिए खेलना है, आपको दूसरे का भी सहयोग करना है। तो सच काइंड ऑफ स्किल्स वी कैन डेवलप थ्रू स्पोर्ट्स ओनली। ऐसे स्किल्स हम स्पोर्ट्स के थ्रू ही डेवलप कर सकते हैं। और क्योंकि स्पोर्ट्स अपने आप में ओवरऑल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका संबंध हर चीज से है, कॉग्निशन से भी है, अफेक्शन से भी है, और कहीं ना कहीं साइकोमोटर से भी है। तो स्पोर्ट इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक कदम है हमारे एनईपी का कि फॉर दिस we consider this as a cross-curricular pedagogic approach. We need to integrate this pedagogy, this sport integrated learning in each and every subject, because we have this Fit India movement, और इसको ही फोस्टर करने का काम करता है कौन? हमारा स्पोर्ट्स। तो इसलिए जो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए भी यदि हम बात करें तो ये इंटीग्रेट करें स्पोर्ट्स को एजुकेशन में, और वेल राउंड और वेल जो हम कहेंगे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात हम एनईपी में देखते ही रहे हैं, है ना। एनईपी कहता ही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट्स, हमें सिर्फ एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जैसे मैंने कहा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बात ही नहीं करनी। हमें तो एक फुली मेंटली और एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल क्रिएट करने हैं ना। हमें किस तरीके का व्यक्ति बनाना है जो कहीं ना कहीं फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो और मेंटली स्टेबल हो। तो हमें जितना इम्पोर्टेंट रोल हमारा करिकुलम को है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज को है। क्योंकि देखिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा ना जब को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा। इवन दो हमारा जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो हमको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटल हेल्थ को हमारे बनाए रखता है। सो दिस स्पोर्ट इंटीग्रेशन जो एक्टिविटी है या जो प्रोविजन है वो बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए। वो हेल्पफुल है कि हम इस स्पोर्ट इंटीग्रेशन को करके इस तरीके से हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं अपने लर्नर्स की। सो दीज कंसंट्रेटेड करिकुलर और पेडागोगी जो इनिशिएटिव्स हैं फॉर डेवलपिंग आवर लर्नर्स, we need such kind of cooperation between these integration with our developing our artificial intelligence, design thinking, our holistic एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी हम बात करते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज और स्पोर्ट्स ही नहीं हमारे हेल्प करते। हमारा लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज का रोल। इसी तरीके से लैंग्वेज यदि प्रॉपरली हमें मिलती है तो लैंग्वेज का हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। एक हम आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू हम ऐसी स्किल्स को इंटीग्रेट करते हैं जहाँ जो एक लॉन्ग रन के लिए बहुत आवश्यक है।
इसी तरीके से स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के थ्रू हम एक फिजिकली और मेंटली हेल्थ इंडिविजुअल के लिए के लिए काम करते हैं। सिमिलरली देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द मैथमेटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि आप बात ही करते हैं ना कोडिंग की, और आजकल तो आप देख रहे होगे बड़ा फेमस हो रहा है कि कोडिंग क्लासेस 6th क्लास से ही बच्चा कोडिंग ज्वाइन कर रहा है। मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिक ट्यूशंस आ रहे हैं, और मैथमेटिक्स के स्किल्स पर, खासकर कोडिंग स्किल्स पर, या कुछ जैसे जो नई नई फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मिलाकर जो बेसिकली चीजें बनती हैं, उन पर बड़ा फोकस इन दिनों चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि कुछ भी क्रिटिकली थिंकिंग के लिए योग्य बनाना है हमारे लर्नर को। क्रिटिकली हमें इस तरीके से बनाना है कि हम उसको कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन लेने के लिए, सही डायरेक्शन में सोचने के लिए यदि इंडिविजुअल को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मैथमेटिक्स स्किल्स की जरूरत पड़ती ही है। तो मैथमेटिकल ट्रेनिंग की या मैथमेटिकल स्किल्स के इन डेवलपमेंट की और इंटीग्रेशन की बात इन्होंने की है। ठीक है। इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स स्किल्स के लिए बात जो इसमें करते हैं, वो यही कहते हैं कि थ्रू अ वैरायटी ऑफ इनोवेटिव मेथड्स, है ना, इंक्लूडिंग द रेगुलर यूज ऑफ पजल्स, गेम्स, इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू यदि हम बात करें, तो हम कहीं ना कहीं अपने लर्नर्स को इस योग्य तो बना सकते हैं कि वो आगे चल के लॉजिकल थिंकिंग को, मैथमेटिकल थिंकिंग को उन आइडियाज में इनकॉर्पोरेट कर सके जो कहीं ना कहीं उसके लिए इनोवेटिव, कुछ नया या अलग करने के लिए आधार बनेंगे। तो सिमिलरली we have focus on the mathematical training in this NEP. For mathematical training, we need such kind of activities, such kind of incorporation of puzzles and mathematical games. Even जो हम puzzles, different तरीके की जो puzzles आती हैं और जो games आते हैं mathematical training के, उन games के लिए भी focus करने की बात NEP के द्वारा कही गई है। NEP ये भी कहता है कि जो लैंग्वेजेस हैं, है ना, कहीं ना कहीं जो हमारे जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो उनको जो यदि हमें प्रमोट करना है, तो उनको प्रमोट करने के लिए हमें आवश्यकता यही है कि हमें उस तरीके की चीजों की आवश्यकता। हाँ, आप यदि हम किसी लर्नर की लैंग्वेज का डेवलप करना चाह रहे हो, तो आपको एक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या हो सकते हैं? वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं इमिटेशन के थ्रू लर्निंग, है ना, थ्रू गेमिफिकेशन, है ना, थ्रू एप्स। जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं हमारे एजुकेशन के, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। हमारे जो फिल्म्स हैं, थिएटर, है ना, जो हम कहते हैं ना कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमें पढ़ाना, पोएट्री जैसी एक्टिविटीज है, म्यूजिक, ड्राइंग के थ्रू, है ना, ये जो लैंग्वेजेस हैं इनके थ्रू हम कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों की तो बात करती है। तो जो लैंग्वेज है, इफेक्टिव जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, वो थ्रू दीज प्रोविजंस वी कैन डू इन आवर लर्नर्स, जहाँ हम फिल्म के थ्रू, गेम्स के थ्रू, थिएटर के थ्रू या स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम अपने लर्नर्स के लैंग्वेज स्किल की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग एक बड़े महत्वपूर्ण मेथड के रूप में उभर के आता है। कहानी आधारित अधिगम, कहानी आधारित अनुदेशन, कहानी आधारित शिक्षण, कहानी आधारित पाठ्य योजनाओं का निर्माण करना है। ऑल्सो वर्क ऑन दिस, मेरे अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट ने काम किया है इस पर, स्टोरी टेलिंग मेथड पर। हालांकि एनईपी ने तो बाद में दिया, पर ही हैज कंप्लीटेड हिज थीसिस इन लास्ट दिसंबर। तो उसमें यही बात की हमने कि हाउ दिस स्टोरी टेलिंग मेथड कैन हेल्पफुल इन डेवलपिंग अचीवमेंट, इन डेवलपिंग स्किल्स इन आवर लर्नर्स। तो यदि हम कंटेंट को थ्रू डिफरेंट स्टोरी, और वो स्टोरीज भी कैसी, वो
कल्चर से रिलेट करते हुए स्टोरीज डेवलप करें, जिस कल्चर में वो लर्नर है, जिस कल्चर में वो लर्नर उस समय रह रहा है या पढ़ रहा है, उस कल्चर से इनकॉर्पोरेट करते हुए हम कहानियों के आधार पर, यदि स्टोरी टेलिंग के थ्रू, हम ड्रामा के थ्रू, ये ड्रामा पेडागोजी भी एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस पर भी मेरे एक एमएड के स्टूडेंट ने काम किया है कि हाउ दिस ड्रामा पेडागोजी इज हेल्पफुल इन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो कहीं ना कहीं ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जो नए, जिनको हम नई मेथोडोलॉजी कहते हैं, वो हेल्पफुल होती है हमारे लर्नर्स के अचीवमेंट के लिए। तो इसीलिए एनईपी भी कहता है कि वी नीड टू, हमें सब इनोवेटिव पेडागोजी पर फोकस तो करना, बट ये जो थोड़ी सी ट्रेडिशनल पेडागोगी हैं, जिनको हम पेडागोगी मानते ही नहीं थे, हम कहते थे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं ये हमारी जो एक तरीके से कहते थे कि हम ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, इसमें पार्टिसिपेट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो ग्रेड मिल जाएगा, इतना ग्रेड हो जाएगा, दैट इज इनफ। तो अब आज उस ग्रेडिंग की बात नहीं, आज तो हम कहते हैं कि ओवरऑल जो करिकुलर है उस पर ही बेस हमारा करिकुलर एक्टिविटीज हो। हम इसीलिए आज ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले तो उसको एक्स्ट्रा मानते थे, को मानते थे, बट नाउ दैट इज द मेन एलिमेंट। हमें यदि इम्प्लीमेंटेशन की जब बात करनी है तो उसको मेन एलिमेंट मान के इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है, उस पर फोकस करके हमें टीचिंग करनी है, उस पर फोकस करके हमें कहीं ना कहीं उस टीचिंग को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। तो इसलिए जो ड्रामा पेडागोजी है लैंग्वेज स्किल्स के लिए जो हम काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के रूप में जो लेके हम कहीं ना कहीं जो अप्रोप्रिएट करिकुलम और अप्रोप्रिएट पेडागोजीज को हम एंगेजिंग पेडागोजी भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका कंटेंट आपके साथ है, आपकी पेडागोगी आपके साथ है, बट इफ यू आर मिसिंग द असेसमेंट, है ना, प्रॉपर असेसमेंट यदि आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य, आप उन लक्ष्यों से पीछे हो जाएंगे। जो आपने गोल डिसाइड किया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपने कहीं ना कहीं एम डिसाइड किया है, दैट एम, है ना, वो एम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा यदि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में आप अपने असेसमेंट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने असेसमेंट स्ट्रेटजीज को आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। सो दिस एनईपी फोकस ऑन द असेसमेंट, जितना फोकस उन्होंने कंटेंट को दिया है, जितना फोकस उन्होंने मेथोडोलॉजी को दिया है, उतना ही फोकस असेसमेंट को भी दिया है। In this pedagogy, in this NEP, it is already mentioned that assessment, kind of assessment, we need a shift from summative to formative assessment. जो समेटिव काइंड ऑफ असेसमेंट है, जहां हम कहते थे कि हमने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, नाउ कम फॉर असेसमेंट, नाउ गिव आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस एंड गेट ग्रेड, है ना। अब उस चीज पर हमें फोकस नहीं करना, आपको हमें कुछ नई तरीके से फोकस करना है, नई चीजों पर फोकस करना है, नई बातों पर हमें फोकस करना है ना। तो हमें क्या करना है, हमें असेसमेंट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी इंपॉर्टेंस हमें टीचिंग को देनी है, जितनी इंपॉर्टेंस हमें लर्निंग को देनी है। सो व्हाट इज दैट, वी नीड टू फोकस ऑन द असेसमेंट टूल। इस तरीके का असेसमेंट फॉर्मेटिव काइंड ऑफ असेसमेंट, जहां सुधार करने की गुंजाइश हो, जहां चेंज करने की गुंजाइश हो, जहां डेवलप करने की गुंजाइश हो, जहां गलती हो तो उस गलती का सुधार किया जा सके। तो इस तरीके से हम यदि कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, वो असेसमेंट का जो सिस्टम है, दिस एनईपी इज प्रोवाइडिंग अ क्लियर कट गाइडलाइंस फॉर असेसिंग आवर लर्नर्स अप्रोप्रिएट। और असेसमेंट भी कैसा, including assessment as learning, including assessment of learning, and including assessment for learning. What is the assessment of learning? It's a kind of summative assessment when we are thinking for the end product. जब हम end product की बात कर रहे हैं ना, then we are thinking for the assessment of learning.
We are thinking that we have just decided some content, we have delivered that content in our classroom, and after that what we did, we have just taken some tests, some material, some questions given to our learners. They give answer to those questions and we will give them later. That is, we are thinking for the assessment of learning. But we need to shift that assessment of learning to the assessment for learning. What is the assessment? What is assessment for learning? Where we are working for the improvement of learning system, where we are doing assessment with the learning, where we are thinking that assessment is not beyond our teaching learning process. If we are doing teaching, if we are learning something, we are doing our teaching learning together with assessment. When we are having formative kind of assessment, we are having discussion, we are having some multiple choice question, we are having some class question, we are having some discussion in form of I'm asking something, students are giving answer to that. कोई भी queries हैं क्लास में पढ़ाते समय जो भी बातचीत होती हैं, जब हम इन सब चीजों के लिए बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं, जहां पर कंटिन्यूअसली हम असेसमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं. एंड वी ऑल्सो थिंक टू मूव फ्रॉम असेसमेंट फॉर लर्निंग टू असेसमेंट एज लर्निंग, वेयर नो वन विल असेस यू. जो हम लोगों को कोई नहीं असेस करेगा, बट वी असेस आवरसेल्फ. हम अपने आप को खुद असेस करेंगे. व्हेन वी आर थिंकिंग फॉर द सेल्फ असेसमेंट, व्हेन वी आर थिंकिंग फॉर द पीयर असेसमेंट, है ना. जब हम असेसमेंट की बात करें सेल्फ असेसमेंट की, कि अपने आप को असेस करना, कहीं ना कहीं अपने आप को असेस करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि जब आपको ये चांस मिलता है कि यू असेस योरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि यू विल नॉट गिव यू लोअर साइड ग्रेड, बट यू ऑल्सो थिंक टू गिव to restrain yourself to not give higher side. क्यों? हायर साइड ग्रेड भी देंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, लोअर साइड ग्रेड में भी कंफ्यूजन रहता है. तो कहीं ना कहीं आप अपने असेसमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाते. पर यदि इफ वी आर थिंकिंग फॉर, सबसे मुश्किल काम है, दूसरों को असेस करना बहुत आसान है, ही इज डूइंग दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड. बट जब आप अपने आप को असेस करते हैं तो बड़ा सोच समझ के असेस करते हैं. सो सेल्फ असेसमेंट एक बड़ा एक अलग तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. क्यों? क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में असेसमेंट आपकी एक्चुअल एबिलिटीज का होता है, जो आप जानते हैं उन एबिलिटीज का होता है. पीयर असेसमेंट में, ग्रुप असेसमेंट में भी वही होता है. व्हेन वी आर थिंकिंग फॉर द ग्रुप असेसमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रुप असेसमेंट का. वी आर असेसिंग द ग्रुप, वी आर असेसिंग द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ दैट ग्रुप. हमने ग्रुप क्रिएट कर दिए, 5 लोगों का ग्रुप बना दिया, 6 लोगों का ग्रुप बना दिया, 7 लोगों का ग्रुप बना दिया, है ना. और जब हमने एक ग्रुप बनाए तो कहीं ना कहीं जब हम यदि ये कह दें कि आफ्टर क्लास या ड्यूरिंग क्लास वी आर असेसिंग ग्रुप, वी आर नॉट असेसिंग द इंडिविजुअल्स, तो क्या होगा? तो उस ग्रुप के सभी इंडिविजुअल्स, उनको पता है कि वी आर एज ए ग्रुप, वी आर वर्किंग एज ए ग्रुप, वी आर लर्निंग एज ए ग्रुप, देन असेसमेंट विल बी एज ए ग्रुप. तो उसमें क्या होगा? जो सबसे कमजोर है, जो सबसे पीछे है, वी नीड टू फोकस ऑन दैट इंडिविजुअल. हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है. क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कमी, है ना, उसकी कम लर्निंग हमें उससे आगे ना कर दे, है ना, पीछे ना कर दे, सॉरी. तो हम लोग पूरा ग्रुप उस व्यक्ति के लिए काम कर रहा होता है, पूरा ग्रुप कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा होता है ना. सो दिस basically self assessment is providing us an way to assess in group assessment कि हम आगे बढ़ के, फॉर्मेटिव से भी आगे बढ़ के इस लेवल पर पहुंच जाते हैं when we are having such idea, जहां हमारा एक ऐसा आइडिया हमारे सामने होता है जहां हम अपने आप को राइट वे में, राइट कंडीशन में, राइट मेथोडोलॉजी के थ्रू और राइट साइड में अपने आप को असेस करते हैं. ताकि, क्यों असेस करते हैं? ताकि हम कहीं ना कहीं अपने उस सिस्टम में, अपने उस जो अचीवमेंट के लेवल में एनहांसमेंट कर सके. ठीक है. तो इसलिए हमारा जो
जैसे डॉक्टर अभी लिख रहे हैं कि डॉक्टर अनीता रानी कह रहे हैं कि बट दिस इज डेफिनेटली चैलेंज टू इंटीग्रेट दीज कॉम्प्लेक्स आइडिया इन आवर कंट्री। challenges हैं, difficult हैं, but these difficulties are only till we are not having the idea to do such things. तब तक ही डिफिकल्ट होता है, तब तक यदि आप डिसाइड नहीं करते, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जितनी भी इनोवेटिव मेथोडोलॉजी, बेसिकली आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी, जितना भी मैं काम अपने रिसर्च उसमें कर रहा हूँ पीएचडी में या फॉर माय एमएड स्टूडेंट्स, वो बेसिकली हम अब तक जो मैंने काम किया है वो बेसिकली मेथोडोलॉजी पर ही काम किया है। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वर्क ऑन क्रिटिकल पेडागोजी, ही इज वर्किंग ऑन क्रिटिकल पेडागोजी। एक स्टूडेंट ने कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम किया है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, एक ने साइंस लैंग्वेज साइंस प्रोसेस स्किल पर कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम किया है, एक ने स्टोरी टेलिंग पर काम किया है, ड्रामा पेडागोजी पर हमने काम किया है, हमने सेल्फ असेसमेंट की इफेक्टिवनेस पर भी काम किया है। फॉर एग्जांपल फॉर एमएड क्लास में हाउ पीपल आर असेसिंग देयर सेल्फ, हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की है इस पर कि सेल्फ असेसमेंट किस तरीके से अचीवमेंट को बढ़ाने में हेल्पफुल है। हमने पीयर असेसमेंट पे भी काम किया है। हमने साथ में ये भी जो भी और बहुत सारी ऐसी कोलैबोरेटिव लर्निंग है, हमारी जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स है, इस पर भी हमने रिसर्च की है। मैंने खुद अपना प्रोजेक्ट ब्लेंडेड लर्निंग पे कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी। तो हम कहते हैं कि ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, खासकर कंस्ट्रक्टिव तो इतना वाइड है, उसमें ही दुनिया भर के मेथड अपने आप में आ जाते हैं। 5E वहाँ पर है, 7E वहाँ पर है, कोलैबोरेटिव वहाँ पर है, कॉम्बिनेशन वहाँ पर है। तो वास्तव में डिफिकल्ट टास्क है, वो डिफिकल्ट तब तक ही है जब तक कि हम सोच रहे हैं। व्हेन वी इनकॉर्पोरेट सच थिंग्स, अपने आप में हम कर सकते हैं। जैसे मैं खुद एग्जांपल दूं कि व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द क्रिटिकल पेडागोगी पर कोई काम इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं हुआ था, हुआ भी था तो वो इतना उस लैंग्वेज उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से हम करना चाहते थे। तो फॉर डेवलपिंग ये जो हमारे लेसन प्लान का है वो बनाना क्रिटिकल पेडागोजी सरफेस बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क था। बट थ्रू द गाइडेंस ऑफ मैनी इंडिविजुअल, मैनी प्रोफेसर्स, हमने डिस्कस किया कैसे करें, क्या करें, कैसे इसको स्टेप्स को फॉलो करें, देन वी डेवलप लेसन प्लान। तो वी कैन इनिशिएट, ये तो है ही। जब कोई पॉलिसी आती है, कोई सिस्टम आता है, वो ये कहता है कि वी नीड टू चेंज दीज थिंग्स, बट वो चेंज जो है ऐसा नहीं है कि किसी एनईपी ने कहा है। आप देखो नेशनल जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, अब से 16 साल पहले का फ्रेमवर्क है, बट स्टिल these things are available in that framework. We have self assessment there, we have peer assessment there, we have assessment of learning, for learning, as learning, सारी कंसेप्ट दिए हुए हैं। बट वी नीड, हमें स्टिल वी आर हैविंग समथिंग, मतलब हमारा एक एफर्ट्स होंगे या उन एफर्ट्स को यूज करने का उतना हमारा भी इम्प्लीमेंटेशन का हमने नहीं सोचा है, तो अभी तक हम लोग पीछे हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर दोज थिंग्स, हम भी सेल्फ असेसमेंट के लिए तो काम कर ही रहे हैं ना, हम भी काम कर रहे हैं न्यू पेडागोजी के लिए। तो इसलिए डिफिकल्ट होता है, पर उस डिफिकल्टी को हम कहीं ना कहीं उस फेस करके हम उसको अपने राइट तरीके से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग के कंसेप्ट को हमें समझना और उनको इनकॉर्पोरेट करना। खुद एनईपी कहता है कि वी नीड टू फोकस ऑन द सबमिट कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जहां हम अपने लर्नर को खुद कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो असेसमेंट कर सके, खुद अपना असेसमेंट कर सके, अपने साथियों का असेसमेंट कर सके। ठीक है। सो वी हैव डिस्कस ऑन डिफरेंट इश्यूज लाइक we have discussed on the sport integration, art integration, we have discussed on the problem solving, experiential learning, we have discussed on the assessment also. If you have any query, then you can write down in the chat box. Otherwise, we will go for further discussion. We have also discussed about the language learning, comprehension of language. Yes,
We request all the participants. Yes, there is one question. जी 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 Should I read, sir? हाँ, Dr. Yes. Umakant, NEP 2020 talks about conceptual and deeper understanding as well as experiential learning. How we will ensure that learners are moving in this direction? What can we do for a change in assessment process and pedagogy content in this regard? Why we are not focusing the performance based assessment rather than content based assessment? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया डॉक्टर उमा जी आपने कि एनईपी जो है 2020 फोकस कर रहा है डीपर अंडरस्टैंडिंग पर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना? बिल्कुल सही है। हम एनईपी ही नहीं कर रहा है, बल्कि आप पुराने डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क भी देखेंगे या जितने भी फ्रेमवर्क पहले, इवन आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुराने हमारे क्या कहते हैं उनका नाम मैं एकदम से भूल रहा हूँ, पोजीशन पेपर, सॉरी, पोजीशन पेपर भी यही कहते हैं। आप पोजीशन पेपर को देखिए, वो यही कहते हैं, बट स्टिल शुरुआत में तो उसकी तरफ को देखना ही अपने आप में कुछ नई चीज होती है ना, उसको ट्राई करना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, यदि आप कहीं जा रहे हैं, मतलब होटल में भी कहीं जा रहे हैं, आप खाने का ऑर्डर देना है, कोई नई चीज को ऑर्डर करते हुए आप हमेशा एक बार थोड़ा सा घबराते हैं ना, पता नहीं क्या है, कैसा होगा, कैसे होगा, है। और खासकर जब हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि जब हमें उसके लिए थोड़ा पैसे खर्च करने हो तो बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, कहीं पर ऐसे ही है तो हम जरूर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो यही वही बात है कि कोई चीजें हैं, इनोवेशंस हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, नई चीजें हैं, उन चीजों को करने में कहीं ना कहीं हम थोड़ा एक बार सोचते तो हैं कि कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, डिफिकल्ट होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एक आगे बढ़ने के लिए काम तो करना है ना। जैसे मैंने कहा कि हम सेल्फ असेसमेंट के बारे में सोचते ही नहीं हैं, बट यदि हम सेल्फ असेसमेंट के बारे में सोचने लगे तो हम ये असेसमेंट का डर ही अपने आप से मिटा देंगे। हम खुद जान जाए ना कि हम कहाँ हैं, हम किस लेवल पर हैं, अपना अपना जो हम एम निर्धारित करते हैं, इंडिविजुअल एम, वो तभी हम निर्धारित करते हैं ना। सिमिलरली कि जब हम ये चेंज करते हैं, देखिए पॉलिसी तो कहती है कि वी नीड टू ब्रिंग शिफ्ट इन आवर सिस्टम, बट पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करती ना। इंप्लीमेंट हमें किसको करना है? इंप्लीमेंट हमें खुद को करना होता है ना। एक टीचर होने के नाते, एक प्रोफेशनल होने के नाते, एक यूनिवर्सिटी के से जुड़े होने के नाते हम सब लोग इंप्लीमेंट करेंगे। इसीलिए एक जो फोकस पॉइंट आगे मैं आपको बताने वाला था, एनईपी यही कहता है कि आपको, चलो मैं पहले ही इस बात को कह देता हूं कि जो आपके स्टेक होल्डर्स है, जो आपका डायरेक्ट इसका इन्फ्लुएंस है उस सिस्टम पर, है ना, उस व्यक्ति को इन्वॉल्व करना है इम्प्लीमेंटेशन में, उस व्यक्ति को आगे बढ़कर काम करना है। तो यहाँ पर हम एक टीचर होने के नाते, खासकर जो हम एजुकेशन वाले हैं, हम तो और अलग तरीके के लोग हैं, हमसे तो ज्यादा अपेक्षाएं रहती हैं सभी को। तो जो उन अपेक्षाओं को, उन एक्सपेक्टेशंस को हमें ज्यादा लोगों के सामने रखना है। मुझे लगता है डॉक्टर उमा कांत जी भी एजुकेशन के ही है ना, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो यदि हम लोग एजुकेशन के लोगों को तो ज्यादा इस चीज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करनी होती है ना। तो इसलिए हम यदि ये कहें कि हमें कैसे करना है, तो ये बात हमें छोड़नी होगी। हमें ये करना है कि हमें करना है, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट। एक आपका स्कॉलर ही है, उसको खुद कहो कि यू वेयर आर यू शुड सेल्फ असेस योर सेल्फ। पहले आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं श्योर हो जाइए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए अब ये जो पहल करनी है वो हमें खुद करनी है। और सही से जो आपने कहा कि व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट रादर देन कंटेंट बेस्ड असेसमेंट, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात अब नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करनी है, हमें असेसमेंट एज लर्निंग की बात करनी है। बिकॉज दिस आउटकम बेस्ड जो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम स्ट्रक्चर है, वो यही तो कहती है, वो यही कह रहा है कि भाई आपको स्किल इंडिविजुअल क्रिएट करने हैं, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल क्रिएट करने हैं, है ना। और कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल तभी बन पाएंगे जब आप उनमें कॉम्पिटेंसी क्रिएट करोगे, है ना।
तो वो कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए तभी महत्वपूर्ण है तब आप उन कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए काम कर रहे होंगे. सो वी थिंक फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, वी थिंक फॉर असेसमेंट एज लर्निंग, देन वी कैन रियली जो हमारी कॉम्पिटेंसी है उसको असेस हम कर पाएंगे. तो एनी अदर वन, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir, there are questions. जी हाँ, Uh, डॉक्टर शंकर राव. Sankar Rao, he जी is asking why not maintaining certain standard qualifications to promote quality of education? चलिए, आपका थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा. जब जहां तक मैं समझ रहा हूँ उसका मतलब ये है कि व्हाई नॉट मेंटेनिंग सर्टेन स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. देखिए, It's प्रमोट very difficult. Yeah, I think it's very difficult, sir. कि बहुत हम एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन करें एंड दैट इज ओनली फॉर प्रमोटिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. आई थिंक वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स, वी एज अ टीचर्स, वी are responsible for promoting the quality in education. Though we all are qualified, we all are having the qualifications, but it's the integrity of ourselves to like how we can promote the quality. We should not be part of the system. I think this is what I understand. Now, sir, it's over to you. जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम कि हमें क्वालिटी को करने के लिए पहले तो हमें इनपुट, हमारा क्वालिटी इनपुट चाहिए ना हमें. मैं कहना नहीं चाहता, बट आज आप कंडीशन देखिए, व्हेन वी आर थिंकिंग फॉर द न्यूली, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे. मैं खुद 2-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मैं खुद पार्ट रहा हूँ. आई वॉज वर्किंग इन इग्नू, आई वॉज वर्किंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. आई एम वर्किंग इन अनदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मैं काम कर रहा था आज से 7 साल पहले की बात है. आज तो अब तो कह सकते हैं कि भाई एमएड 2 साल का हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया भाई एडमिशन होना. हम उस समय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा हम क्वालिटी इनपुट दे रहे थे, इतनी अच्छी लाइब्रेरी, इतना अच्छा कल्चर, सब कुछ था वहाँ पर हमें स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे थे. इवन दो 5-6 काउंसलिंग करने के बाद भी, व्हेन वी ओपन एडमिशन फॉर एवरीवन कि यू जस्ट कम विद योर सर्टिफिकेट, टेक एडमिशन इन आवर एमएड कोर्स, तब भी हमें पूरे 50 स्टूडेंट नहीं मिले. तो भैया, हमें जो क्वालिटी मेंटेन करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करने के लिए हमें इनपुट तो चाहिए ना. क्वालिटी इनपुट चाहिएगा, देन वी कैन हैव द क्वालिटी आउटपुट. One more example I am sharing with you. When I was working in a government college in UP, तो उसमें जब मैंने देखा कि एग्जामिनेशन था और यूनिवर्सिटी ने शुरू किया कि जो एक परफॉर्मा होता है ना, जो कंप्यूटराइज परफॉर्मा होता है, उस पर उन्होंने पूरी डिटेल भरवाकर उसको अटैच करना होता था उसमें. उस समय मैं रोंग नहीं हूँ तो जो परफॉर्मा होता था उसमें डिफरेंट जो हमारा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो कंप्यूटर के थ्रू हम OHP शीट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम याद से नहीं आ रहा है मेरे. तो उस परफॉर्मा को भरवाना होता था हर स्टूडेंट से, और उसको हमें कॉपी के साथ अरेंज करना होता है ताकि उसकी डिटेल्स हम ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज कर सकें. तो इसी तरीके से जब वहाँ पर हम बीए का स्टूडेंट से हम वहाँ पर उनको एक एक करके नाम भरवाया करते थे कि ये इस कॉलम में ये आएगा, इस कॉलम में ये आएगा, इस कॉलम में ये आएगा. और उनको कई बार स्टूडेंट ये होता था कि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पर आप मान लिया फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज सुमित कुमार, तो किसी स्टूडेंट ने अपना, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते थे जो अपना नाम की जगह वो सुमित कुमार ही लिख देते थे क्योंकि सर बता रहे हैं सुमित कुमार. मैंने कहा ये उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल के लिए है. तो इसलिए हम कहते हैं ना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो आपको एक बच्चे से ये तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उसकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई है, उसकी सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ हुई है, उसकी हायर एजुकेशन कहाँ हो रही है, और कैसा कंटेंट. मान लो फॉर एग्जांपल अभी हम शिफ्ट कर दें सिस्टम को, अभी हम इनोवेटिव सारी चीजें लेके आ जाएं, ब्लेंडेड लर्निंग लेके आ जाएं, बट हम बच्चे को तो चेंज नहीं करेंगे ना. बच्चा तो वही प्राइमरी एजुकेशन से लेके आया, पढ़ के आया है, वही हायर एजुकेशन पढ़ रहा है, उसका बैकग्राउंड नहीं हम चेंज कर सकते, उसके फैमिली बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते. तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है कहीं ना कहीं इस चीज को मेंटेन करना, क्वालिटी को मेंटेन करना. और क्वालिटी तभी होगी जब हमारा इनपुट
बेटर होगा, तब हमारा प्रोसेस अच्छा होगा और आउटपुट तो अपने आप में ही बेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं हम लोग, हालांकि यहाँ हम एजुकेशन चीज़ों की बात नहीं करें बिकॉज वी आर वी आर डिस्कसिंग ऑन द टीचिंग पेडागोगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं जब हम मैथोलॉजी की बात करते हैं तो मैथोलॉजी में और कोई क्वेश्चन तो शायद नहीं है, जनरल बातें हैं। चलो हम फिर आगे बढ़ें, मैम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये पेडागोगी की एमए एजुकेशन वर्सेस दैट इज बात होने लग गई, तो ये हम इस एरिया को तो आई थिंक विल नॉट उसको नहीं टच डिस्कस। कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट मास्टर। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वी कैन डिस्कस ऑन दैट ग्रुप। Yes, on other platform we can discuss जी that. जी जी। You please तो continue, sir. जी 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 जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने जो डिस्कशन अभी तक किया, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, तो बड़ा फोकस हमने किया है इस एनईपी में क्रिएटिविटी पर। क्रिएटिविटी पर बहुत बातें इसमें एनईपी में दी गई है, बहुत डिस्कशन दिया हुआ है कि हमें क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को डेवलप करना है। तो कैसे करना है, उसके लिए साफ साफ इन्होंने लिखा है कि फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी the institution and the faculty should have autonomy of innovation on matters of curriculum, pedagogy and assessment। तो वही बात आगे देखिए, साफ साफ कहा गया है कि जो फैकल्टी है, जो इंस्टीट्यूट है, उसको ऑटोनॉमी है कि दे कैन क्रिएट देयर करिकुलम, दे कैन क्रिएट देयर पेडागोगी, दे कैन क्रिएट देयर असेसमेंट। तो जब ये बात हो जाएगी, जब एक टीचर का खुद का रोल होगा, तो देन ही कैन प्रमोट हिज न्यू थिंग्स, ही कैन प्रमोट हिज जो बियॉन्ड ट्रेडिशनल थिंग है उसको प्रमोट कर ही सकता है। तो इसलिए क्रिएटिविटी पर फोकस करने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई थी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, जो हमारा जो सिस्टम है, जो आप बात कर भी रहे हैं, कि जो कंसिस्टेंसी यहाँ पर होनी चाहिए थ्रू डिफरेंट सिस्टम। क्योंकि जब आप इनोवेशन के प्रमोशन की बात करेंगे, जब आप करिकुलम पेडागोजी में आप ऑटोनॉमी देने की बात करेंगे, तो ऑटोनॉमी क्या, एक सिस्टम, जैसे हम एजुकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल चलो आ ही गया कि हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम को इम्प्रूव करने की, तो सिस्टम की डिफरेंट लेवल की क्वालिफिकेशन, ट्रेडिशनल हो, ऑनलाइन हो, या फिर आपका ओडीएल हो, उनमें डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए एम तो एक ही है ना, पर्टिकुलर एम तो एक ही चीज का, एक ही का है। क्या एम है, एम यही है कि हमें डेवलप करना है अपने सिस्टम को, हमें अपने लर्नर्स को डेवलप करना है, हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में सुधार करना है। तो इसलिए वो ओडीएल के थ्रू पढ़ रहा हो, वो ऑनलाइन पढ़ रहा हो, वो क्लासरूम में पढ़ रहा हो, why to do separation, हमें अलग अलग नहीं करनी। हमें अलग अलग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम सफर करेगा, है ना। इसीलिए जो असेसमेंट की बात हम करते हैं, सॉरी 1 मिनट। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। तो हम जब, तो यहाँ पर जो और जो कंसंट्रेट किया है एनईपी ने, देखिए एनईपी में एक इतना बड़ा वाइड एरिया है, खासकर मैं बात करूँ जब एनईपी की, ये पूरा इसको आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो मेन फोकस है एनईपी का वो असेसमेंट, कंटेंट, करिकुलम, इन्हीं सब चीज़ों पर ज़्यादा है। तो जो यहाँ पर बात की है एनईपी में, उसमें यही कहा है कि जो असेसमेंट का एम है ना, जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम में जो एम है वो यही है कि हम जैसा अभी बात हो रही थी कि फॉर्मेटिव से हम कॉम्पिटेंसी बेस लर्निंग को प्रमोट करने के लिए उस कॉम्पिटेंसी को, उस क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत फोकस किया गया है। तो इसलिए क्रिटिकल पेडागोगी की बात हमें करनी भी आवश्यक होती है। तो कहीं ना कहीं उस क्रिटिकल थिंकिंग को, और खासकर जो एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो एसेंशियल
कंपोनेंट हैं, जो हमारे हर इंडिविजुअल के जो बेसिक एबिलिटीज हैं, खासकर जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, जो फंडामेंटल जो कैपेसिटीज हैं, उन सबकी डेवलपमेंट के लिए बात करता है ये एनईपी। और कहता भी है कि जो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग है वही बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग को, इनोवेशन को प्रमोट कर सकता है। तो हमें फाइनली डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पर बात करनी है। डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस कि जो आपका पावर्स हैं, जो आपकी एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज पर आपको फोकस करना, और उन एबिलिटीज के थ्रू आपको अपने जो कलीग्स हैं, अपनी जो टीम है, उन टीम्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसेंट्रलाइज करना, है ना। डिसेंट्रलाइज करना मीन्स जैसे जिसकी जो एबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जैसे डॉक्टर अंजलि जी हैं, वो मान लिया बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये, तो इट मीन्स आगे कोई फ्यूचर में कोई प्रोग्राम हो, देन वी कैन डिसेंट्रलाइज सच थिंग्स, सच पावर्स टू ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू डॉक्टर अंजलि। ऐसा ही है कोई दूसरी एक्टिविटी है, देन वी कैन गिव टू डॉक्टर अमित। सो दीज कंडीशंस, दीज थिंग्स कैन बी और डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी से काम करने को, एफिशिएंट बनने के लिए हमें प्रमोट करता ही है। ये आप जानते ही होंगे कि यदि आपके पास पावर्स हैं करने की, यदि आपके पास डिसीजन लेने की पावर्स है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर ही सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी जो बातें कही गई हैं उसमें से, इसलिए जो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की जो बात कही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने परख जिसका नाम दिया है, उसका यही काम होगा कि what we have decided, what kind of content we have decided, what kind of methodology we have decided, we should have regular check on those. हमें समय समय पर सही दिशा में, सही तरीके से 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं उन पे हमें पारंगत करने के लिए, उनमें हमें एफिशिएंटली थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए हम उसका असेसमेंट होना, टाइमली असेसमेंट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए नेशनल असेसमेंट सेंटर जैसी एजेंसीज जो सिर्फ इसी पर काम करेंगी, उसको परख का नाम दिया गया है। तो ऐसे संस्थानों का होना अपने आप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। यदि हम टेक्नोलॉजी, यदि हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, यदि हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, यदि हम बात कर रहे हैं न्यू मेथोडोलॉजी की, आई एम नॉट ऑडिबल। No, sir, you are perfectly audible. We can hear you. I think on the part of Dr. Sankara Rao, there may be a technical glitch or some network issue. Yes. नो 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 प्रॉब्लम। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो एक हमारा सिस्टम है, जो हमारा हम पेडागोगी को ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग नई चीजों को, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे तो हमारी बात अधूरी होगी। तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की तो बहुत इफेक्टिव तरीके से बात की गई है एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इवन पूरा का पूरा एक चैप्टर ही टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन पर है। और उसमें जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी है कि दे सेड कि वी कांट इग्नोर आवर ऑफलाइन सिस्टम, उसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, बट with that offline system, to improve that offline system, we need to integrate our online system too. हमें अपने ऑनलाइन सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है उस ऑफलाइन सिस्टम में। सो दोनों चीजें, दोनों की अच्छाइयां हमारे साथ होंगी तो वी कैन बी अ बेटर कम्युनिकेटर, हम अच्छे से काम कर पाएंगे, इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग, ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग पर फोकस किया गया है। ये ब्लेंडेड मोड, देयर आर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। आप किस पर फोकस करना चाह रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है ना। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए बेटर होगा, कौन सी मेथोडोलॉजी आपके लिए बेटर होगी, कौन सी कंडीशंस आपके लिए बेटर होंगी, टीचर को डिसाइड करना होता है। सो एनईपी इज सेइंग टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन आवर टीचिंग, है ना। जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन है, टू मेक आवर टीचर्स एंड आवर लर्नर्स टेक्नो सेवी। तो इसलिए हमें जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को समझने की
और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और जैसे जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है। दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग फॉर द डिजिटल इंडिया कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म एंटायर नेचर फॉर डिजिटली एम्पावर्ड। आप देखेंगे ना कि यदि आप 2016 से पहले, आई थिंक 16 ही था, ऑनलाइन पेमेंट आप में से कितने लोग करते होंगे, पर जब पेमेंट जब ये शुरू हुआ, जो जिसको नोटबंदी हम कहते हैं, वो हुआ था, देन वी हैव स्टार्टेड आवर सिस्टम फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। 2020 से पहले कितने लोग हम ऑनलाइन टीचिंग करते थे, कितने लोगों को पता था कि हम इस तरीके से भी यूट्यूब थ्रू, फेसबुक के थ्रू लाइव जाकर, इंस्टाग्राम लाइव जाकर हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, नहीं जानते। बट कोविड कंडीशन, पेंडेमिक कंडीशन ने हम लोगों को इतना एबल बना दिया, नाउ वी कैन हैव दिस कंडीशन। कितने लोगों को ये पता था इनिशियली, जब हम बात करें, जब हम 2020 में शुरू किया कि आप लोग ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बहुत इशू आता है कि वो आप उसको म्यूट करना, कोई अनम्यूट हो रहा है, कोई वीडियो दिखा रहा है, किसी का फैन चल रहा है, किसी का कुछ, बड़ी केओस कंडीशन होती थी। नाउ वी हैव कंट्रोल ऑन माय आवर हैंड। जैसे आपके इस प्रोग्राम में डॉक्टर अंजलि इज हैविंग ऑल कंट्रोल, उनको पता, उनको अब जिसको म्यूट करना है, जिसको नहीं करना है, मैम के हाथ में है सब। हमको नहीं सिस्टम पता होता, लेकिन व्हेन वी हैव दिस, जो हमारी हैबिट में लाने के लिए यदि हमें कुछ प्रोविजंस करने होते हैं, देन वी कैन डू दोज प्रोविजंस, और उससे हम इनको, जैसे डिजिटल इंडिया कंपनी ये कहता है ना कि वी नीड टू बी डिजिटली मोर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंट, हमें अपने आप को टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंट बनाना होगा। तो आजकल तो वो भी सीनियर लोग भी जो कभी कंप्यूटर ईमेल का यूज नहीं करते थे, वो भी आज आपको देखोगे तो दे आर गिविंग लेक्चर्स ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दे आर हैविंग देयर यूट्यूब चैनल्स। सो द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की जो बात हमने की है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसका पर्पज ही यही है टू प्रोवाइड सच एनवायरनमेंट, सच अ platform where we can have such a forum where we can exchange our ideas regarding teaching, regarding learning, assessment, planning, administration, है ना। एक फोरम ऐसा प्रोवाइड करना जहां पर रेडीमेड सारी चीजें हों, जहां पर हम डिस्कशन कर सकें, जहां पर हम टेक्नोलॉजिकल इनपुट के बारे में सोच सकें, इनोवेशंस के बारे में सोच सकें, टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में सोच सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज से पहले जैसे हमने टीचिंग शुरू की, देखिए ऑनलाइन टीचिंग हमने शुरू की, बट हमें नहीं पता था कि ऑनलाइन असेसमेंट कैसे करें। कुछ लोगों ने गूगल टूल के थ्रू असेसमेंट शुरू किया, है ना। कुछ लोगों ने कुछ और तरीके से असेसमेंट शुरू किया, कुछ लोगों ने टेस्ट मोड्स को यूज करना शुरू किया, कुछ लोगों ने क्लास मेकर का यूज किया ना। पीपल आर यूजिंग डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि हम किस तरीके से उस सिस्टम को यूज करते हैं, कैसे एफिशिएंटली यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है ऑन प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ आर इंडिविजुअल। उस ट्रेनिंग का काम करने का, देने का काम जो एक नोडल एजेंसी का काम होगा, वो बेसिकली नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम करेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन है, इस पर हम काम कर सकते हैं। ब्लेंडेड मोड को हमें प्रमोट करने की, इवन जो हमारे कोर्सेज हैं, खासकर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म है, स्वम है, या जो जितनी भी एजेंसीज हैं, नोडल एजेंसीज है, NIUS है, CBSE या CIT या NCERT, है ना, ये सारे प्लेटफॉर्म, ये सारे एजेंसीज मिलकर हम टेक्नोलॉजी को सर्वसुलभ, रीचेबल बनाएं, है ना, इतना एफिशिएंट बनाएं कि हर इंडिविजुअल उसको यूज कर सके। इसीलिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरानी पॉलिसीज इन चीजों के बारे में चुप थी या वो नहीं बताती थी कि टेक्नोलॉजी का इनपुट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने खुद एक पूरा स्टडी किया, सारी पॉलिसीज का मैंने स्टडी किया कि व्हेन आई वाज राइटिंग वन पेपर ऑन एजुकेशन पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, तो मैंने पुरानी 1968 या बीच में जो भी कमेटीज आई 1986 या फिर जो 1992 का जो रिविजन्स थे, सारी पॉलिसीज को पढ़ा। दे ऑल्सो मेंशन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, बट क्योंकि जब डेवलपमेंट उतना ही था,
मान लिया 1986 कह रही है कि वी नीड टू यूज द कंप्यूटर, वी नीड टू यूज द OHP, हम अपने कंप्यूटर में वो ओवरहेड प्रोजेक्टर को यूज करें। क्यों वो कह रहे थे? क्योंकि उस समय ओवरहेड प्रोजेक्टर ही अवेलेबल था, कंप्यूटर्स उसी लिमिटेशन में अवेलेबल थे। नाउ वी आर थिंकिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वी आर थिंकिंग अबाउट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम, वी आर थिंकिंग अबाउट द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं ना। हम तो आजकल कह रहे हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, है ना। चाहे वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका गूगल स्कॉलर, गूगल क्लासरूम का हो, या एडमूडो का हो, या मूडल बेस्ड हो, या फिर आपका क्लाउड मूडल हो, या फिर कोई और सिस्टम हो। क्रिएटिव कॉमन्स जैसे सिस्टम भी अवेलेबल हैं। क्रिएटिव कॉमन्स पर आप अपने खुद के कोर्सेज बना सकते हैं। आप ई कंटेंट, edX जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां ई कंटेंट आप डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन। यू कैन यूज यूट्यूब फॉर डेवलपिंग योर ओन ई कंटेंट, है ना। तो ये क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट मीडियम्स हैं, और उन मीडियम्स को यदि आपको प्रमोट करने के लिए काम करना है या उनको यूज करने के लिए काम करना है, देन वी नीड टू थिंक which one is the best, which one is better for us। वैसे तो देखिए बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे सिस्टम की तरफ नहीं जाना, हमें तो सिर्फ उस सिस्टम को एक्सप्लोर करना जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेटर है, ये हमारे लिए बेटर नहीं है। जब हम ये सोच लेंगे, ये जान लेंगे, तो वो सिस्टम अपने आप में इम्प्रूव हो जाएगा, उसको हम अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे, एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की जो बात की है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल टू चूज the appropriate methodology, to choose the appropriate medium, and to incorporate that appropriate medium into your offline teaching. Even offline teaching can be happen in the blended mode. You are teaching through the lecture method. Even you can have some offline component also. You can have some discussion modes also. So एक बात है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे हम इस मेथोडोलॉजी को, किस टीचिंग मेथोडोलॉजी को हम और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, और एफिशिएंट बना सकते हैं, और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, ये जैसे एक बड़ा अच्छा दिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, कि जो रीजनल लैंग्वेज है, हम हमेशा रीजनल लैंग्वेज को पीछे छोड़ देते, बट दिस पॉलिसी इज सेइंग वी नीड टू फोकस ऑन द रीजनल लैंग्वेज। आप एक कंटेंट बनाइए, बहुत क्वालिटी कंटेंट डेवलप करिए, हो सकता है नेशनल लैंग्वेज में हो, वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, बट यू नीड टू ट्रांसलेट दैट कंटेंट इनटू रीजनल लैंग्वेज। That's why they have promoted, they have suggested the translation board, एक पूरा इंडियन ट्रांसलेशन भारतीय अनुवाद संघ जैसे एक स्थापना की बात उन्होंने कही है, कि जहां बेसिकली यही होगा कि जो मेन कंटेंट होगा, जो क्वालिटी कंटेंट होगा, वो एक लैंग्वेज में होगा, और उस कंटेंट के बाद में वी नीड टू वी विल क्रिएट सच कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रमोट या जो सजेस्ट किया है एनईपी ने, बहुत सारी चीजें और भी हैं जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। If you have any questions, we can have some discussion on those questions. Yes, Dr. Rajyadhar Das has written, audio level is very poor. So I just want to tell you, I think there must be some technical problem on your part, on your side, because sir is very much audible to all of us. Maybe some network issue. Maybe some network issue. डॉक्टर नीति जी सही रहे हैं, नीति दत्ता मैडम बोल रहे हैं कि वेरी मच ऑडिबल, इट मींस yes, yes. Dr. Neeti has written. Yes, so नमस्कार Dr. Rajyadhar also has. सभी उन लोगों को नमस्कार जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, बट हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। डॉक्टर नीति, आकाश, डॉक्टर आकाश रंजन is also here. Yes.
So I think there are no questions, sir. Your explanation is your presentation is self-explanatory. थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ भी क्लियर ना हुआ। दो चीजें होती है ना, या तो सब कुछ क्लियर हो गया या कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर है, बिकॉज डिस्कशंस भी बीच में चली हैं एंड we received a lot of positive comments. The participants are appreciating for the presentation. So I think there are no questions. Can have some more discussion on 10 minutes. 10 मिनट हम डिस्कशन और कर सकते हैं। कर सकते हैं। Yes, so I request all the participants to please write any doubts or any questions in the chat box. If you are not having any question, you can write your observation also about NEP. Yes, so that Dr. Akash has written, we are enlightened so much. Thank you. I do agree, Dr. Akash. Thank you, ma'am. आप सभी को, Professor Sangeeta ma'am is also here. So yes, Professor Sangeeta Chauhan ma'am has also joined. Ma'am, namaskar. Good afternoon, ma'am. नमस्कार सर। आपकी तो बहुत अच्छा हुआ, आपके वीडियोस भी देखती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज अंजलि मैम ने आपको बुलाया है ना, तो थैंक यू सो मच मैम। सुनने में भी बहुत अच्छा। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। Dr. Shalini is also here. डॉक्टर शालिनी मैम को भी नमस्कार। Dr. Anita has written much clear and knowledgeable session. जी, thank you ma'am. I think there is no question. Yeah, so I think now no we can question means good. No question Yes. means good. Please, हाँ, Yes. हम बोल रहे हैं। जी। So, Shalini ma'am, we request you to please put your video on. So now we can conclude the session. Sir, you want to say something or should I begin? Just I want to say one thing that thank you family of Guru Gobind Singh Indraprasth University. बहुत सभी लोग बहुत अच्छे से मतलब कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसके सभी लोग मेरे अच्छे मित्र हैं, इनमें वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। प्रोफेसर संगीता मैम इज हियर, प्रोफेसर धनंजय जोशी सर, प्रोफेसर सरोज मैम, डॉक्टर शालिनी मैम एंड डॉक्टर अमित, एंड स्पेशल थैंक टू डॉक्टर अंजलि जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स। अंजलि जी तो बहुत प्रेज करती हैं आपकी। अंजलि जी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था, डॉक्टर अंजलि ने आपको ना, तब से हम आपको सुन रहे हैं जी। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। And I think Professor Sirish ji is a good friend of Dr. Amit also and Dr. Dhananjay ji also. जी, अमित जी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। डॉक्टर धनंजय सर से भी बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सब लोगों से बहुत स्नेह मिलता है, अच्छा लगता है गुरु गोविंद सिंह में, है ना। वर्चुअल में पहले भी आया हूँ यहाँ पर और ऑफलाइन मोड में, तो भी बहुत अच्छा लगा और अब ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा लगा। खासकर आप लोग सामने हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, sir. So now I want to propose the formal vote of thanks to you, sir. Thank you for taking such an enlightening session on the pedagogical transformation in the light of National Education Policy 2020. It was really an informative session. You rightly said about that the nothing in curricular and co-curricular activities is like we are talking about this is curricular, this is co-curricular, but exactly everything is curricular. So you rightly said that. And we need to integrate Indian arts as a curricular activity, as an art and in the education. Also, we need to integrate the sports in education to make the learner more disciplined, teamwork oriented, responsible for having the responsible attitude and the other attributes that can be inculcated in the learner's behavior.
So I do agree with these points, sir. And you rightly highlighted that the national education policy talks about the holistic development, but also the character building of the nation. Yes, so we need to see on these matters. And at the end of the session, I want to thank you on the behalf of University School of Education, Guru Gobind Singh Indraprasth University, for sparing your valuable time with us and taking such a wonderful session with us. We are really grateful to you, sir. Thank you. so much. आपको पुनः एक बार नमस्कार. धन्यवाद. Thank you so much. So now I request all the panelists to please put your video on. Shirish sir, if you can put your video on for a second so that we can have the screenshots. And I request Dr. Shalini Yadav to please, yes, thank you so much, ma'am. So I request Shalini Yadav has done it on time. Shirish sir, aap hain? Ma'am, I think he left. No, I think he left the session. Okay, so you must have taken some screenshots earlier or not? Yes, ma'am, I've taken. Okay. So thank you very much. And thank you so much to all the participants for remaining focused throughout the session and also making the session very interactive, as you have written your comments also and you have raised the questions in between the session. So thank you to all the participants. And I think now we can end this session and we will take a short break. And again, we will meet at 3:30 for another session by Professor Harjeet Kaur Bhatia. So till then, I think we are ending the session. Thank you once again.